Hello students, today onwards we are going to start the next lesson from your syllabus. The name of the lesson is written in front of you, and related to this lesson some information also I have written here. Why I have written directly this information without explanation, that also I will tell you, because last year we have discussed about those all points which I have written here already, and the new points which are there in this lesson, those points I will discuss, I will explain, I will elaborate those all other points. But the points which we have studied already, those points I have written directly over here. Those points means we will use our recap memory over here. We will try to remember the points which we have studied before that. For that purpose, this data or this information already I have explained, already I have written over here. Okay, last year in which lesson you have studied, you try to remind it, then you will come to know that this information one by one I will explain this point, then you will come to know that. Okay, one clue I will give you. Last year we have tried to find out the frequency. Okay, we have tried to find out the frequency distribution tables. In that lesson we have discussed those all other points. Okay, today we are going to start the point or the lesson from your syllabus, that is statistics, the new lesson from your syllabus, and the points which you have studied already, those we are going to carry over here in this lesson also. Why we have to carry those all points, that is also very important thing. Which points also I have carried here, that is also very important thing. Why we have to carry those all points? Because those are the basic points of the statistics. And which points I am going to carry? Look here, first point I have written here, class. Second point is the class limit. Third point is the class size or class width. Then fourth point is the class mark. Those are the four important points or the basic points regarding to these statistics. Okay, we will revise, we will try to remember, we will try to explain once again, or we will try to explain to whom? Ourselves, because already you know this. लास्ट ईयर तुमने ये ऑलरेडी स्टडी किया है, तो खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, ये डेफिनेशन देखने के बाद रिमेंबर करने की भी कोशिश करो. देखो इधर स्टैटिस्टिक्स, टुडे ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट दिस लेसन स्टैटिस्टिक्स. तो बेसिक पॉइंट जो है अभी रिवाइज करेंगे. पहला पॉइंट है क्लास. व्हाट इज मीन बाय क्लास? लुक हियर, definition is written in front of you. When the observations are divided into suitable groups, each of the group is called class. Last year also we have discussed about it. When we are dividing the observations in the suitable groups, means our convenient group we can say. हमें जैसे हमें ग्रुप बनाने हैं उस हिसाब से हम क्या करेंगे, वो ग्रुप बनाने शुरू कर देंगे. तो वो जो ग्रुप बनते हैं, जो सुटेबल ग्रुप्स बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? When the observations are divided into suitable groups, each of the group is called class. Okay, look here, for example 0 to 5, 5 to 10. Here look here, it's very important. 0 to 5 इसका मतलब है 0 to 5, 0 minus 5 नहीं, 5 to 10, ऐसा इसका क्या करेंगे हम, रीडिंग करेंगे. ओके, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, like that so on. नीचे भी क्लासेस लिखे देखो, 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20. If you'll observe both the classes, those classes, when we will observe, then we will come to know that the first line of the classes is continuous classes and second one is the discontinuous classes. Means upper limit of the first class and lower limit of the second class is same in the first sequence, and in the second sequence upper limit of the first class and lower limit of the second class is not same. That's why it is known as the discontinuous classes. Okay, do you understand? यानी कि इसमें डिफरेंस होता है. लास्ट ईयर हमने ये स्टडी किया है. तो किसी भी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्लासेस बना सकते हैं. इधर हम क्लासेस बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज इन द एग्जाम्पल्स वी विल गेट दोज क्लासेस ऑलरेडी. ओके, दैट्स, बट we must know what is the definition. What is the definition? See, when the observations are divided into suitable groups, each group is called the class. Okay, ये हमने स्टडी किया था लास्ट ईयर में. दूसरा पॉइंट हमने स्टडी किया था क्लास लिमिट. ओके, look here, what is mean by class limit? The end values of class is called class limit. The end values of the class is known as what? Class limit. Here I have written one class 6 to 10. Okay, this value 6 is known as lower limit of the class and this value 10 is known as upper limit of the class, and those are, you will see, then you will come to know that those are the end values of the class. Okay,
दैट्स वाई दोज आर नोन एज क्लास लिमिट. नेक्स्ट वन, क्लास साइज, और उसको हम बोल सकते हैं डिफरेंट वर्ड में क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल. व्हाट इज मीन बाय क्लास साइज, व्हाट इज मीन बाय क्लास विड्थ, और व्हाट इज मीन बाय क्लास interval? Look over there. Okay, definition is written. When the classes are given, in those classes the difference between upper limits of the classes, or lower limit of the classes is called class size. If the classes are given to us, अगर हमें classes दिए हैं तो वो जो classes दिए हैं उन classes में से एक तो हमें क्या लेना है, अपर लिमिट का डिफरेंस लेना है, नहीं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लोअर लिमिट का डिफरेंस लेना पड़ेगा. जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस लेंगे, और बोला है दोनों में से एक कौन सा भी लेना है. ओके, इधर मैंने एक एग्जांपल दिया, देखो हियर आई हैव रिटन क्लासेस 5 to 10, 10 to 15, सो ऑन. देन क्लास साइज कैसे फाइंड आउट किए, देखो अपर लिमिट 15 - 10 दैट इज इक्वल टू 5, और लोअर लिमिट इधर लिए है 10 - 5 दैट इज इक्वल टू 5. यानी कि एक तो तुम्हें हमें अगर क्या फाइंड आउट करना है, क्लास साइज और क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल, इनमें से एक वर्ड यूज किया जाता है. सपोज वी वांट टू फाइंड आउट क्लास साइज, क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल, देन फॉर दैट पर्पज वी हैव टू टेक डिफरेंस इन बिटवीन अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स. ओके, डिफरेंस कौन से लिमिट्स में से लेना है, एक तो तुम क्या करो, अपर लिमिट्स का डिफरेंस ले लो, नहीं तो लोअर लिमिट्स का डिफरेंस ले लो. ओके, उसको बोलते हैं क्लास साइज और क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल. इधर सॉल्व करके दिखाए, देखो द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस पे एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, और वो पॉइंट तुम्हारे सामने अभी रखा है, देखो क्लास मार्क. व्हाट इज द पॉइंट, क्लास मार्क. व्हाट इज द डेफिनेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू सी दिस डेफिनेशन इन अ प्रॉपर वे. द एवरेज ऑफ लोअर क्लास लिमिट, एंड अपर क्लास लिमिट फॉर अ गिवन क्लास. क्या बोला है, देखो द एवरेज ऑफ लोअर क्लास लिमिट द एवरेज ऑफ लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट फॉर अ गिवन क्लास इज नोन एज क्लास मार्क. इधर एक क्लास भी दिया है हमको 5 to 10, तो एवरेज कैसे निकालना है, देखो व्हाट इज मीन बाय क्लास मार्क. तो डेफिनेशन के हिसाब से इधर एक फॉर्मूला लिखा है, देखो ओके, व्हाट इज टोल्ड इन द डेफिनेशन, the average of lower class limit and upper class limit. This is very important, the average of lower class limit and upper class limit. okay, तो क्लास कौन सा दिया था हमें, 5 to 10. तो फार्मूला कैसा बनता है, देखो क्लास मार्क इज इक्वल टू L डॉट एल यानी कि लोअर लिमिट प्लस, ध्यान से देखो इधर L डॉट एल यानी कि लोअर लिमिट प्लस U डॉट एल यानी कि अपर लिमिट, डिवाइडेड बाय 2. डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया है, क्योंकि लोअर और अपर लिमिट दो ही नंबर है इधर. ओके, तो बाद में एक्सप्लेनेशन देखो, क्लास मार्क C डॉट एम लिखा है, C डॉट एम इज इक्वल टू 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2, देन 15 डिवाइडेड बाय 2, देन 7.5. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जांपल्स रिगार्डिंग टू दिस लेसन. वी मस्ट नो हाउ टू फाइंड आउट द क्लास मार्क. इसके लिए फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्या फॉर्मूला है, देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ओके, दैट स्पेसिफिक क्लास का. ऐसे ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट इज नोन एज क्लास, सेकेंड वन इज नोन एज क्लास लिमिट, थर्ड वन इज नोन एज क्लास साइज और क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल, एंड फोर्थ वन इज नोन एज क्लास मार्क. ओके, तो अब हम इस लेसन को स्टार्ट करेंगे. तो पहला पॉइंट इस लेसन का, आई विल कंटिन्यू हियर, लुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन. मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मीन ऑफ ग्रुप डेटा यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट द मीन, देन वी कैन यूज 3 मेथड्स ओवर हियर. हाउ मेनी मेथड्स वी कैन यूज हियर, 3 मेथड्स. हम इधर कितने मेथड्स यूज कर सकते हैं, 3 मेथड्स यूज कर सकते हैं. द मेथड नेम्स आर रिटन फ्रंट ऑफ यू. फर्स्ट मेथड इज नोन एज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड मेथड इज नोन एज अज्यूम्ड मीन मेथड, एंड थर्ड मेथड इज नोन एज स्टेप डेविएशन मेथड. ओके, इसमें से इस साल जो 30% सिलेबस डिडक्शन हुआ है, इस साल हमें ये स्टेप डेविएशन मेथड इस साल कैंसिल की है. तो पहले 2 मेथड ही हम इस साल क्या करेंगे, स्टडी करने की कोशिश करेंगे. पहली मेथड कौन सी है, डायरेक्ट मेथड, और सेकंड मेथड कौन सी है, अज्यूम्ड मीन मेथड. तो आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट मेथड. द नेम ऑफ द मेथड इज रिटन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज डायरेक्ट मेथड.
ओके, एग्जाम्पल कैसे दिया जाता है, दैट एग्जाम्पल इज ऑल्सो आई हैव रिटन। एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है मैं अभी दिखा दूंगा, लेकिन एग्जाम्पल कैसे दिया जाता है देखो। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इधर जो टेबल है वो टेबल मैंने इधर थोड़ी सी समझने के लिए ये बड़ा सा टेबल लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में भी हम टेबल लिख सकते हैं। देखो इधर क्लास इंटरवल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, दो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास इंटरवल्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो क्लास इंटरवल्स है दैट इज नथिंग बट क्लासेस। तो इधर मैंने तुमको पहले ही बताया, इधर हमें क्लासेस फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी हमें क्लासेस एग्जाम्पल में दिए जाते हैं। ओके, दिस इज नोन एज क्लास इंटरवल मीन्स क्लासेस आर गिवन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। इधर फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती, दैट फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो ऑलरेडी गिवन इन द एग्जाम्पल। देखो इधर क्लासेस शुरू होते हैं 10 to 25, फ्रीक्वेंसी है 2 मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 25 to 40 3, 40 to 55 7, 55 to 76, 70 to 85 6 एंड 85 to 100 6। और नीचे ऐसी इंस्ट्रक्शन दी जाती है। ओके, क्या देखो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो पूरा एग्जांपल इधर होता है, देखो ये जो डेटा है इस डेटे का बाय डायरेक्ट मेथड, इधर मेथड तुम्हें एक्सप्लेन की जाएगी। ओके, अगर मेथड नहीं दी है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, अगर मेथड नहीं दी है तो दोनों में से कौन सी भी एक मेथड तुम यूज कर सकते हो। यू कैन यूज डायरेक्ट मेथड ऑल्सो, यू कैन यूज अज्यूम्ड मीन मेथड ऑल्सो। ओके, देन हाउ टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्रंट ऑफ यू, लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। The examples which are related to direct method, those are very simple one. Why very simple one, that I am going to explain. Listen यार, ऑलरेडी दो हमें कॉलम दिए जाते हैं, एक क्लास इंटरवल का और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। ओके, यानी कि हर बार क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होंगी। तो पहला जो दिया जाता है उसको हम क्लास इंटरवल बोलेंगे, एज इट इज़ लिखा तो चलता है, और दूसरा जो दिया जाता है उसको हम फ्रीक्वेंसी भी अगर बोलते हैं तो भी चलता है। तो हमें इसमें खाली दो कॉलम ऐड करने हैं और एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो एज इट इज़ ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हमें कॉपी करनी होती है, कैसे कॉपी करनी है, एग्जाम्पल कैसे स्टार्ट करना है, देखो आई विल शो यू। ओके, लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, लुक सॉल्यूशन। ओके, इन दिस सॉल्यूशन वट एवर गिवन थिंग्स आर देयर वी हैव टू कॉपी एज इट इज। डायरेक्ट मेथड के लिए हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं। ओके, अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमें 5 कॉलम्स बनाने हैं, और स्टेप डिवीजन के लिए हमें 6 कॉलम हम बनाते थे। इस साल वो मेथड कैंसिल किया तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक बात ध्यान में रखो, डायरेक्ट मेथड के लिए हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं, पहले ऑलरेडी 2 कॉलम्स दिया, हमें 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं और वो एग्जाम्पल सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर पहला पॉइंट मैंने तुमको बताया, क्लास इंटरवल। ओके, समझ में आ रहा है। दूसरा हमें जो दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, और वो एक्सप्लेन की जाती है एफ आई। क्या लिखा जाता है उधर, एफ आई, फ्रीक्वेंसी। ओके, थर्ड जो कॉलम हमें बनाना है वो हमें खुद का बनाना होता है, फोर्थ भी हमें खुद का बनाना होता है। ओके, ऐसे हमें इधर कितने कॉलम्स बनाने हैं, 4 कॉलम्स हमें बनाने हैं। पहला क्लास इंटरवल एज इट इज़, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज इट इज़। तो पहले ये कॉपी करेंगे एज इट इज़। ओके, और बाद में मैं तुमको बता दूंगा कैसे कॉलम्स आगे के फिलअप करने हैं। तो क्लासेस एज इट इज़ कॉपी करेंगे 10 to 25, 10 to 25, देन 25 to 40। ओके, then 40 to 55, then 55 to 70, then 70 to 85, then 85 to 100, then 85 to 100, और इधर हमें ये क्लोज करना है, इधर हमें लिखना है टोटल। टोटल यानी कि इसका टोटल नहीं करना है, किसका टोटल करना है मैं बता दूंगा, देखो। ओके,
ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। एज इट इज़ मैंने ये जो क्लास इंटरवल दिए थे कॉपी किए। नाउ आई विल कॉपी देयर फ्रीक्वेंसीज ऑल्सो 2 3 7 6 6 6। ओके, क्या फ्रीक्वेंसी दी है देखो, इसकी दी है 2, जो हमें एग्जाम्पल में दिया था वही कॉपी कर रहा हूँ एज इट इज़। इधर देखो, इधर 2 3 7 6 6 एंड 6 एज इट इज़ हम इधर कॉपी करेंगे 2 3 7 6 6 एंड 6। ओके, ये दो कॉलम एज इट इज़ हमने कॉपी किए है, जो इन्फॉर्मेशन दी थी एज इट इज़ कॉपीड। ओके, अभी क्या करना है देखो, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हाउ टू टेक सम ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी। ये जो अभी फ्रीक्वेंसी हमें दी है उसकी सम लेनी है, तो सम के लिए कौन सा सिंबल यूज करना है देखो, ये है सिंबल। ओके, हॉरिजॉन्टल एम की तरह दिखता है, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ एफ आई। समेशन यानी कि सम, सम किसकी सम हमने ली, एफ आई की। समझ में आया, गॉट आइडिया, समेशन ऑफ एफ आई। तो अभी इसकी सम करो, 6 6 + 6 12 18 18 24 25 25 + 5 30, इतने आ गए आंसर 30। ओके, अभी हम थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम ये हमें बनाना है। समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें डायरेक्ट मेथड समझ में आ गई तो अज्यूम्ड बिन मेथड जो है इजीली समझ में आएगी, क्योंकि उसमें हम यही सारे कॉलम कॉपी करते हैं, ओनली एक कॉलम हम एक्स्ट्रा बनाते हैं। तो ये चार जो कॉलम है, ये जो 4 कॉलम है, ये कैसे बनाने हैं देखो। थर्ड कॉलम दैट इज नथिंग बट, यू विल नोन अबाउट इट, जो मैंने लास्ट कंसेप्ट तुम्हें बताई थी। थर्ड कॉलम इज नथिंग बट विच वन, क्लास मार्क। इधर हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्लास मार्क, और क्लास मार्क सिंबल है एक्स आई। क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास हमें फाइंड आउट करके इधर लिखना है। ओके, इन सारे क्लासेस का क्लास मार्क फाइंड आउट करके इधर लिखना है। क्लास मार्क का फॉर्मूला अभी बताया मैंने तुमको। ओके, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ये 10 to 25 ऐसे बोला जाता है, माइनस साइन नहीं है। गलती से स्टूडेंट बहुत बार ऐसा बोलता है 10 - 25, ऐसे भी बोलते हैं स्टूडेंट, दैट इज रॉन्ग। रिमेंबर कैसे बोलना है, 10 to 25। तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10 + 25 डिवाइडेड बाय 2। ओके, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज वी विल गेट 35 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट विल गेट 17.5। हमें इधर आंसर क्या मिलेगा, 17.5। समझे, तो इधर हमें लिखना है 17.5। ऐसे हमें सारे ये जो क्लासेस है उनके क्लास मार्क पहले फाइंड आउट करने हैं, और वो क्लास मार्क फाइंड आउट करके हमें इधर लिखने हैं। ओके, आई विल राइट हियर ऑल क्लास मार्क्स। देखो इधर 32.5, 32.5, नेक्स्ट वन इज 47.5। ये क्लास मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तुम्हें पता चलेगा। नेक्स्ट जो हम कॉलम फिलअप करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 47.5, देन 62.5, देन 77.5, देन 92.5, देन ये हो गए क्लास मार्क। अभी इधर हमें एडिशन वगैरह कुछ नहीं करना है, डैश। समझे क्या किया है देखो, ध्यान में आया। हमने इधर सारे क्लास मार्क लिए। कैसे क्लास मार्क फाइंड आउट करना है, 10 + 25 डिवाइड बाय 2, 25 + 40 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे करके ये जो आंसर आता है इधर लिखना है, उसको बोलेंगे हम क्लास मार्क। ओके, अभी जो नेक्स्ट कॉलम है ये इन दोनों कॉलम पे डिपेंड करता है, दैट इज नथिंग बट एफ आई इंटू एक्स आई। व्हाट इज एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि इस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, इस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। ऐसे सारे मल्टीप्लिकेशन हमें क्या करने हैं, इधर लिखने हैं। ओके, अभी मल्टीप्लाई करो, 2 × 17.5, अभी इधर लिखता हूँ देखो मैं 35.0, नेक्स्ट 97.5। ओके, सिंपली इधर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, स्मॉल डिवीजन, स्मॉल मल्टीप्लिकेशन, इतना ही है। ध्यान से अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, और ये मैक्सिमम 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
Okay, next 7 into 47.5, that is 332.5. Okay, next 6 into 62.5, that is 37.0. 375.0. आंसर क्या आता है देखो, 6 इंटू 62.5, 375.0. देन 6 इंटू 77.5, 465.0. 465.0 और 6 इंटू 92.5, 555.0. अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है देखो, इधर हम इसका पूरा समेशन लेंगे, यानी कि सम लेंगे। जैसे मैंने इधर लिखा था समेशन ऑफ एफ आई, ऐसे ही इधर हम लिखेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, इसकी क्या करनी है, हमें एडिशन करनी है। ओके, एडिशन अगर करोगे तो तुम्हें एडिशन इतनी आएगी 1860। एडिशन कितनी आ गई, 1860। गॉट आइडिया। देखो मैंने क्या किया, देखो एज इट इज़ पहले 2 कॉलम कॉपी किए, इधर से एक्चुअल एग्जांपल स्टार्ट हुआ, इसका सम करके इधर लिया समेशन ऑफ एफ आई। बाद में ये क्लास मार्क्स फाइंड आउट किए, क्लास मार्क का फॉर्मूला ऑलरेडी तुम्हें मालूम है। बाद में एफ आई एक्स आई, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके 2 से 17.5 को मल्टीप्लाई करके इधर ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करके इधर लिखा और उसका आप भी समेशन लिया। ओके, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। मीन इज इक्वल टू, अभी ध्यान से देखो मैं मीन कैसे फाइंड आउट करना है दिखा देता हूँ। ओके, मीन उसको बोलते हैं, अभी मैं इधर ब्रैकेट में लिख के दिखाता हूँ, एक्स बार। मीन एक्स बार इज इक्वल टू, क्या करना है देखो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई को समेशन ऑफ एफ आई से डिवाइड करना है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। व्हाट आइडिया, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ओके, देयरफॉर नेक्स्ट एक्स बार इज इक्वल टू 1860 डिवाइडेड बाय 30। देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू, अगर डिवीजन किया जाए तो आंसर क्या आता है देखो, आंसर आएगा 62। 0 0 कैंसल, 3 1 जार 3, 3 6 जार 3 2 जार, आंसर क्या आया 62। ओके, द मीन ऑफ गिवन डेटा इज कितना है 62। समझे, ऐसे हमें डायरेक्ट मेथड यूज करके मीन फाइंड आउट करना है। आई होप यू गॉट आइडिया अबाउट इट। रिमेनिंग वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।